pH plus POH is equal to 14। अगर आपको सिर्फ pH निकालना है तो आप क्या करोगे 14 माइनस POH, या POH निकालना है तो 14 माइनस pH। You will get the value of POH and pH from the pH plus POH is equal to 14, also called as relationship between the pH and POH. Okay, so when solution is acidic, when pH is less than 7, या हम बोल सकते हैं कि when concentration of H plus ion greater than OH minus ion, when concentration of H3O plus ion, that is H plus ion, is greater than H3O OH minus, then it is said to be acidic. And when concentration of OH minus ion is greater than H plus, that is H3O plus, then solution is said to be basic. And जब concentration of H plus and OH minus दोनों भी इक्वल होते हैं तो न्यूट्रल. So what happen in acidic pH? pH कितना होता है? Less than 7. Okay, in neutral pH 7, and in acidic basic pH greater than 7. Now look at the numericals given on page number 52. It is a very easy numerical. सिर्फ क्या करना है, हमें सीखना है how to take anti-log of negative number. How to take anti-log of negative number. So numerical number 3.5. कौन सा numerical? Okay. Calculate the pH and POH of 0.01 molar HCl solution. बेटा देखो, बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि pH is equal to negative log to the base 10 of H3O plus ion, that is H plus ion. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया हुआ है? 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है? HCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ना कि H3O प्लस का. बच्चे क्या कर देते हैं, 10⁻⁻² इसका ही pH रख देते हैं, बट इट इज नॉट. आपको क्या करना है, यूज द फॉर्मूला. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl क्या होगा? सो क्या दिया है, D1 क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब C इज इक्वल टू 0.01 मोलर. ओके, नाउ यू नो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? pH and POH. एक मिल गया तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, बिकॉज pH plus POH is equal to 14. ध्यान इधर. Now solution. So HCl, which is a gas, in its aqueous solution, that is in water, will be dissociated into, yes, किसमें dissociate हो रहा है? H3O plus ion plus HCl minus. Okay, so at equilibrium the concentration of HCl is 0.01 and therefore HCl is a strong electrolyte. HCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? So जितना हमने लिया है उतना ही पूरा वो क्या होगा, डिसोसिएट. अगर यहाँ पे वीक एसिड होता, समझ में आ रहा है? देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए जितना लिया है वो पूरा डिसोसिएट होगा. ओके, बट अगर दूसरा एसिड होता है जैसे एसिडिक एसिड या वीक एसिड, तो हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती. समझ में आ रहा है? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो इट इज डिसोसिएटेड कंप्लीटली. जितना हमने लिया है उतना पूरा H+ और Cl- में डिसोसिएट होगा. लेकिन अगर वीक एसिड होता तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अल्फा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नाउ H3O plus 0.01, which can be written as 10⁻⁻². What is the formula? pH is equal to negative log to the base 10 of H3O plus ion या H plus ion. बेटा what is the benefit of the log to the base 10? log to the base 10 एंटी-लॉग लेने की जरूरत नहीं होती. So pH is equal to negative log to the base 10 of 10⁻⁻². Now use the formula log of a to the power n is equal to n of log n. So 10⁻⁻ मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ it is a to the power n. So ये -2 सामने आएगा, माइनस माइनस पिकअप, माइनस माइनस पिकअप, log of 10 is 1. तो आंसर कितना आएगा?
क्या है बराबर देखो 2 आया क्योंकि log of 10 is 1 so 2 into 1 2 2 into 1 2 क्लियर। सो pH कितना आ रहा है सो हमें और एक निकालना है क्या निकालना है सो वी नो दैट pH plus pOH is equal to 14 therefore pOH is equal to 14 minus pH therefore pOH is equal to 14 minus 2 it means it is 12 so pH is found to be 2 and pOH is found to be 12 और दोनों की सम हमेशा कितनी होनी चाहिए 14 अंडरस्टूड एवरीवन। सो क्या दिया था हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl दिया था जो था 0.01 ओके क्या निकालना था pH and pOH। सो HCl is a strong electrolyte HCl is a strong electrolyte so it dissociated completely to form H3O plus ion and Cl minus। अगर weak electrolyte होता तो हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती समझ में आया। सो इनकी जितना HCl है उतना ही क्या बनेगा H3O plus ion and Cl minus। so what is the concentration of H3O plus ion 0.01 जिसको हम कैसे लिख सकते हैं and what is the formula of pH pH is equal to negative log to the base 10 of H3O plus ion। now H3O plus ion मतलब 10 raised to power -2 ये -2 सामने आएगा तो क्या बन जाएगा 2 and log of 10 is 1 so 2 into 1 2 and pOH भी निकाल ले तो pH plus pOH is equal to what is the value of pH 2 so pOH is found to be 12 clear। now उस स्लाइड को बंद करो। Now problem number 3.6. Problem number 3.6. pH of solution is 3.12. Calculate the concentration of H3O plus ion. Please बेटा इसको अच्छे से समझना। Easy है लेकिन ट्रिकी है क्योंकि हमें नेगेटिव एंटीलॉग लेना है और नेगेटिव एंटीलॉग कभी भी हम नहीं ले सकते उस नेगेटिव को हमें क्या करना है पॉजिटिव। सो प्रॉब्लम नंबर 3.6 क्या गिवन है अरे गिवन क्या है pH कितना है एंड टू फाइंड क्या करना है concentration of H3O plus ion okay now what is pH pH of solution is given as ऐसे लिखना okay pH of solution is given as pH is equal to negative log to the base 10 of H3O plus ion so मैं ऐसे लिख सकती हूँ negative log to the base 10 of H3O plus ion is equal to 3.12 क्योंकि pH की वैल्यू कितनी है now नेगेटिव साइड हम ट्रांसफर कर लेते तो क्या होगा log to the base 10 H3O plus ion is equal to minus 3.12 multiplied by negative sign on the both side so minus minus become positive और ये हो गया नेगेटिव। अभी हमें H3O plus ion निकालना है तो log हटाने के लिए क्या लेना पड़ता है एंटीलॉग so H3O plus ion is equal to एंटीलॉग इसका एंटीलॉग -3.12 लेकिन याद रखना नेगेटिव नंबर 3 को भी है नेगेटिव नंबर 0.12 को भी है और हम जो एंटीलॉग है वो 0.12 के बाद का लेते हैं ध्यान इधर होना चाहिए सबका तो हमें इसको पॉजिटिव करना है समझ में आ रहा है नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग कभी भी नहीं ले सकते नंबर शुड बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव। अभी देखो इसको पॉजिटिव कैसे करना है सो H3O plus ion can be written as anti-log of -3 minus 0.12 ओके -3 minus 0.12 दोनों को एडिशन करो -0.12 ही आ जाएगा अरे यस और नो अगर हमने दोनों के एडिशन की तो क्या हो जाएगा यस -3.12 सो नाउ वी विल कन्वर्ट दिस नंबर टू पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव कैसे करना है पॉजिटिव करने के लिए हम अरेंजमेंट करेंगे ताकि नंबर भी चेंज ना हो और हमारा नंबर पॉजिटिव बन जाए। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू ध्यान देना अभी सुशल खड़े हो जाओ और उसके बाजू का दोनों भी खड़े हो जाओ। सो एंटीलॉग इज इक्वल टू -3
-1 +1 -0.12। क्या किया हमने? -1 +1। कभी भी याद रखना डेसिमल के पहले के नंबर में -1, डेसिमल के पहले नंबर में -1 और डेसिमल के बाद के नंबर में +1। एक्चुअली देखो दे आर कैंसिल ईच अदर। बताया था मैंने आपको ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि हमारा नंबर भी चेंज ना हो जाए और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव भी हो जाए। नाउ इट बिकम 2 ग्रुप्स, बिफोर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। हम लॉग एंटी लॉग रहते हैं आफ्टर डेसिमल, तो हमें आफ्टर डेसिमल के नंबर को पॉजिटिव करना है। सो इट बिकम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1 -3 -1 -4 और प्लस में से 0.12 गया तो अरे 1 में से 0.12 गया तो कितना बचा? 0.88। तो इसको हम लिख सकते हैं H3O प्लस आयन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ। बेटा जब भी ये नंबर निगेटिव सामने का होता है ना, इसको ऐसे बाहर करके लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कर सकते हैं उसका बाहर। बचा कौन है? 0.88। नाउ टेक का एंटी लॉग। अभी हमारा नंबर पॉजिटिव हो गया, सामने का नंबर नेगेटिव है लेकिन पीछे का नंबर कैसा है? पॉजिटिव। तो टेक का एंटी लॉग ऑफ 0.88। 0.88 का एंटी लॉग 0 है 7 5 8 6। फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल और सामने जो भी होता है वो क्या आ जाता है? रेस्ट टू द पावर में। तो रेस्ट टू द पावर में कितना जाएगा? -4 मोल पर dm³। ओके, यही आंसर है। ओके, सो इन दिस वे इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द H3O plus या OH minus concentration using the same formula. Only you have to take care that negative anti-log should be converted to positive. Now ध्यान दो फिर से। क्या दिया था हमने? pH दिया था जो था 3.12। क्या फाइंड करना था? concentration of H3O plus ion। फॉर्मूला क्या है? pH is equal to negative log to the base 10 of H3O plus ion। हमें किसकी वैल्यू दी है? pH की। तो हमने क्या लिखा? नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O plus ion इज इक्वल टू 3.2। फिर हमने नेगेटिव साइड शिफ्ट कर ली। अभी लॉग को हटाने के लिए क्या लेना पड़ता है? एंटी लॉग। लॉग एंड एंटी लॉग कैंसल ईच अदर, सो वी विल गेट द नंबर। लेकिन नेगेटिव साइड होने के है इसीलिए हम उसका एंटी लॉग डायरेक्टली नहीं ले सकते। डेसिमल के बाद के नंबर को हमें क्या करना है? पॉजिटिव। सो -3.12 कैन बी रिटन एज -3 -0.12। अभी इसको हमें पॉजिटिव करना है इसलिए हमने क्या किया? -1 +1। डेसिमल के पहले नंबर में -1, डेसिमल के बाद के नंबर में +1। सो -1 -3 बिकम -4 और 1 में से 0.12 गया तो 0.8। नाउ 0.8 बिकम प्लस क्योंकि 1 की साइड बड़ी है। यस और नो? नाउ देन इसको कैसे लिख सकते हैं? ये जो माइनस नंबर है उसको बाहर करके इसको कहते हैं बाहर 4.88। जब हमने एंटी लॉग देखा 0.88 का तो आ रहा है 7.586 into 10⁻⁻4 मोल पर dm³। व्हाट इट एवरीबॉडी? इज इट इजी? एक तो न्यूमेरिकल आप करके देखोगे तो आपको ये और अच्छे से जमेगा। ओके, सो मोल पर dm³ को दूसरा और एक वर्ड है, क्या कहते हैं उसको? मोल। ओके, और मोल भी कह सकते हैं। ओके, और आप क्या कहते हैं उसको? कैपिटल एम, दैट इज मोल्स। क्लियर एवरीवन? व्हाट इज दिस न्यूमेरिकल? ओके, सो राइट। नाउ नेक्स्ट इज 3.7. Okay, 3.5 and 3.6 was so easy. Now next numerical is 3.7. Can I write? So 3.7 देखो, अभी मोनोबेसिक एसिड। बेटा देखो इस पहला जो था ये न्यूमेरिकल, इसमें हमने HCl लिया था जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन था उसको हमने डायरेक्टली पुट किया था। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है? अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% डिसोसिएट। कितना डिसोसिएट हो रहा है? 0.04%। बताया था मैंने, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था इसीलिए हमने अल्फा को कंसिडर नहीं किया था क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1
आती है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट में H2+ निकालने के लिए हमें जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा से, दैट इज 0.04 डिवाइडेड बाय 100 से। In 0.025 molar solution, what is the pH of solution? Understand the question. क्या बोला है? A weak monobasic acid. मोनोबेसिक का मतलब जिसमें एक H+ आयन होता है उसे मोनोबेसिक कहते हैं। फिर 0.04% डिसोसिएट, मतलब जितना हमने लिया है उसमें से कितना डिसोसिएट हो रहा है, ओनली 0.04%। इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है सोल्यूशन का, 0.025 सोल्यूशन। ओके, अब क्या निकालना है, pH। ओके, कैन आई रब? नाउ ध्यान दो, एवरीवन लुक एट द बोर्ड। क्या दिया था पहले हमें? यस, क्या दिया है? व्हाट इज गिवन? परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब परसेंटेज अल्फा जो है 0.04। अभी अल्फा को अगर हमें नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100। सो 100 को हम कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻², और 100 को 10⁻²। ये 10⁻² भी ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -2, तो इट बिकम 10⁻⁻⁴। समझ में आया? 10⁻⁻4 कैसे बना, 0.04 को कैसे लिखा, 4 इंटू 10⁻²। 100 को कैसे लिखा, 10⁻²। 10⁻² ऊपर गए तो -2, तो -2 बिकम -4। एंड सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.025 मोलर। ओके, नाउ टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, pH ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन, ठीक है, एक लाइन लिखना मत भूलना। द pH ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज, क्या लिखोगे, pH ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज। ओके, सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हमारे पास H3O+ आयन नहीं है, सो यू विल नो दैट कि H3O+ आयन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, अल्फा इंटू सी। For weak electrolyte, H3O+ ion is equal to alpha into C, and for strong electrolyte, H3O+ ion is directly equal to C because alpha is equal to 1. Now put the values. H3O+ ion is equal to, alpha की वैल्यू कितनी है, 4 into 10⁻⁴, and C की वैल्यू 0.0। So 4 5s are, sorry 25 4s are 100। ओके, इंटू 10⁻⁴, और कितने डेसिमल के बाद पॉइंट आएगा, 3, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴, और ये 10⁻⁻⁴, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 वोल्ट। समझा है? 10⁻�5 कैसे आया, किसी को प्रॉब्लम है? ये देखो आंसर कितना आया, 4 25 4 100, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, मतलब आंसर इज आंसर 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴। 0.1 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻⁴ बिकम 10⁻⁻5 मोल। सो व्हाट इज द H3O+ ion concentration, 10⁻⁻। नाउ पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव log to the base 10 of 10⁻⁻⁵। अगर कोई भी नंबर 10⁻⁻⁻ में होगा तो वो इट बिकम पॉजिटिव। अगेन यूज द सेम फॉर्मूला, log of a to the power n is equal to n into log a। सो -5 सामने आ जाएगा, माइनस माइनस बिकम, और 10 का log, सो 5 into 1, तो pH इज इक्वल टू, ओके, आंसर क्या लिखोगे, अरे आंसर क्या लिखोगे, द pH ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज इक्वल्स टू is 5. Okay, the pH of weak monobasic acid is 5. Is it easy? Okay, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? Now look at the next numerical, that is 3.8. The pH of
मोनोएसिडिक वीक बेस, बेटा बेस। ओके, सो बेस है बेटा, बेस में H प्लस आयन होते हैं या OH माइनस आयन होते हैं? पहले तो हमें POH निकालना पड़ेगा एंड देन POH से pH, क्योंकि डायरेक्टली हम pH नहीं निकाल सकते। Calculate its percentage dissociation in 0.02 molar solution. ओके, क्या दिया है? pH ऑफ मोनोएसिडिक वीक बेस। बेस है तो POH निकालो, POH को कन्वर्ट करो pH में एंड देन कैलकुलेट द, यस, क्या कैलकुलेट करना है? ओके, नाउ देखो pH ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज, पहले हम क्या करेंगे? pH से POH निकालेंगे, POH से OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे एंड देन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन को कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी। हमारे पास C की वैल्यू है, OH माइनस हम निकालेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द अल्फा। नाउ डाल दो न्यूमेरिकल नंबर 3.8। क्या दिया है हमें? pH दिया है, yes, 3.8. So what is given? pH is equal to 3.8 बराबर, and sorry 11.2 and concentration कितना दिया है? 0.02। फाइंड करना है, तो फाइंड क्या फाइंड करना है? परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब परसेंटेज अल्फा। नाउ सॉल्यूशन, बेटा एसिड बोला है या बेस बोला है सॉल्यूशन इसमें? तो बेस का क्या होता है? pH या POH? so pH plus POH is given as 14. Therefore POH is equal to 14 minus pH. What is the value of pH? 11.2. So pOH is found to be 2.8. Okay. Now what is the formula? POH is equal to negative log to the base 10 of OH minus ion concentration. हमें निकालना है OH minus ion concentration. Then we will follow the same formula. OH minus ion concentration is equal to alpha into C. यहाँ पे मिलेगा हमें अल्फा, फिर अल्फा को हम क्या करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सो मैं लिख सकती हूँ H3O plus OH minus ion concentration is equal to anti-log of minus, sorry, ये माइनस anti-log of POH. Yes, what is POH? कितना POH दिया है? कितना कैलकुलेट करने के बाद कितना आया POH? Yes, 2.8. नाउ लेकिन ये निगेटिव है, निगेटिव का एंटीलॉग हम नहीं निकाल सकते। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा फिर इसको? पॉजिटिव। सो एंटीलॉग इज इक्वल टू -2 माइनस 0.8। जो नंबर है उसको स्प्लिट कर दो। ओके, नंबर को क्या करना है? स्प्लिट, मतलब नंबर डेसिमल के पहले का नंबर और डेसिमल के। ओके, नाउ ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर भी नेगेटिव है। हमें काम कौन से नंबर से? आफ्टर डेसिमल। तो इसको नंबर को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव। कैसे? एडिंग -1 बिफोर डेसिमल एंड +1 आफ्टर डेसिमल नंबर। ओके, सो इट बिकम -2 -1 -3 और 1 में से 0.8 किया तो बचे कितने? यस, 1 में से 0.8 किया तो कितना बचा? 0.2। ओके, मैंने बताया था इसको कैसे लिख सकते हो आप? 3 के ऊपर 5.2। तो टेक द एंटीलॉग ऑफ 0.2 मतलब 0.20। बराबर बताओ। 0.32 का एंटीलॉग देना है, एंटीलॉग 1585। ठीक है, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल, और ये 10⁻, पता है ना, सामने जो भी है वो 10⁻ में जाता है। सो 3 मतलब -3, तो इट बिकम 10⁻⁻3।
सो अभी तक न्यूमेरिकल हुआ क्या, हमें क्या निकालना है, अल्फा. सो वी नो दैट OH minus ion is equal to alpha into C. Therefore, alpha is equal to OH minus ion concentration upon C. What is OH minus ion concentration? 1.585 into 10 raised to power. और C कितना है? 0.02. 0.02 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 10 raised to power -2. ये कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, -1. 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 0.7 सा 9 2 5 into 10 raised to power -1. ओके, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 7.925 into 10 raised to power -2. अभी हमें सिर्फ अल्फा निकालना है या परसेंटेज अल्फा निकालना है? सो परसेंटेज अल्फा निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से. तो 10 raised to power -2 एंड 100 कैंसिल. सो परसेंटेज अल्फा कितना आया, 7.925. इज इट करेक्ट? Okay, so in this way we can find out. This can be asked for 3 marks क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर, पहले तो हमें OH माइनस निकालना है और उसके बाद अल्फा निकालना है. ओके, ध्यान दो क्या दिया था कि एक बेस है जिसका pH है 11.2, लेकिन बेस के लिए pH नहीं, क्या निकालते हैं, pOH. तो हमने क्या किया कि पहले pOH निकाला यूजिंग द फॉर्मूला pH plus pOH is equal to 40. So pOH is found to be 2.8. हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, 14 minus 11.8 is found to be 2.8. Now what is the formula of pOH? pOH is equal to negative log to the base 10 of OH minus ion concentration. Therefore, OH minus concentration is equal to anti-log of negative pH. Okay, now pH की वैल्यू हमने पुट की जो है 2.8. -2.8 का डायरेक्टली एंटी-लॉग नहीं ले सकते, इसीलिए नंबर को हमने स्प्लिट किया, -2 - 0.8. ओके, देन ऐड -1 टू द फर्स्ट नंबर एंड पॉइंट में क्या है, डेसिमल के बाद के नंबर में +1. एक्चुअली कैंसिल हो रहे हैं, पता है ना, ऐसे अरेंजमेंट करनी है कि नंबर भी चेंज ना हो और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बच जाए. तो ये -2 - 1 बिकम -3 और 1 में से 0.8 गया तो 0.2. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 बार 0.2 मतलब 0.20, जिसका एंटी-लॉग आ रहा है 1.585 into 10 raised to power -3. Now second formula, OH minus ion concentration is equal to alpha into C. Therefore alpha is equal to OH minus upon C. OH minus ion कितना था, 1.585 डिवाइडेड बाय 0.02. 0.02 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 10 raised to power -2. तो आपने कैंसिल किया, यहाँ पे कितना बचा, -1. तो आंसर कितना आ रहा था, 0.7925 into 10 raised to power. इसको कन्वर्ट किया हमने 7.925 into 10 raised to power. अभी परसेंटेज अल्फा निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो -2 100 क्या हो गए. द आंसर इज फाउंड टू बी अल्फा इज इक्वल टू 7.925%. ओके, सो आंसर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन इज 7.925%. क्लियर, दैट इज इट. ओके, नाउ सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का 6 and 7, क्वेश्चन नंबर 3 में 9 and 10 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में 9 1. ओके, इसमें भी pH और pOH या H+ आयन या H2O+ आयन या OH माइनस आयन या अल्फा परसेंटेज अल्फा निकालने के लिए बोला गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 6 देखो. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 6, calculate the pH of solution. The pH of solution is 6.06. Calculate its H+ ion concentration. Everyone look at the textbook. क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा है, 7. pH of solution is 6.06. Calculate its H+ ion concentration. क्या फॉर्मूला है pH का, pH
इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपको क्या दिया हुआ है? pH दिया है और क्या निकालना है? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगेन आप क्या करोगे? pH इज इक्वल टू एंटी लॉग, ओके, तो pH की वैल्यू पुट करके आप H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। क्या कर 6.06 को स्प्लिट करोगे, 6 माइनस 6 एंड माइनस 0.06, फिर -1 से माइनस करोगे, जमेल क्या अंदर बघा 7। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। 0.01 मोलर को कैसे लिखोगे? डायरेक्टली 10⁻², 10⁻² का pH कितना आएगा? जैसे 10⁻⁻5 का कितना आया? 10⁻⁻3 का, तो 10⁻⁻2 का, ठीक है। तो ये एकदम इजी है। क्या लिखोगे? गिवन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? H प्लस आयन कितना है? 0.01, जिसको कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2, तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन, और H3O प्लस आयन कितना है? 10⁻⁻2, -2 सामने आ जाएगा, माइनस माइनस बिका, एंड लॉग ऑफ 10 2 into 1 2, ओके, समझ ना। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगर नहीं आया तो हम कल डिस्कस करेंगे, ओके। सो pH ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 3.2 in its 0.02 मोलर सॉल्यूशन। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेटा pH दिया हुआ है, ओके, pH से आप क्या निकालोगे? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ओके। अगेन एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करोगे कि अल्फा इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी। बाद में आप अल्फा निकालोगे, ओके, ट्राई करो, सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट देखो, हाँ, फिर अल्फा से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है, इससे मिलेगा आपको अल्फा। फिर अल्फा का फॉर्मूला यूज करोगे, अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू √k/c, दैट इज k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। और एक कल मैं आपको नया फॉर्मूला बताऊंगी, या कौन सा फॉर्मूला? तो वो डायरेक्टली k इज इक्वल टू अल्फा, नहीं, k √ka इंटू सी, √k इंटू सी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये मैं आपको करके दूंगी, ठीक है। एक नया मतलब एक फॉर्मूला है जो हमने दो फॉर्मूला को मिक्स करके बनाया है, दैट इज अभी यहाँ पे अल्फा का रिलेशन है, लेकिन अगर अल्फा नहीं है तो डायरेक्टली आप H3O प्लस आयन निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला √k इंटू सी, ओके, √k इंटू सी। लेकिन आई थिंक डायरेक्टली किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि √, लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टेट में ये फार्मूला यूज़ करने का एक फ़ायदा ऐसा है कि आपको लॉग बुक अवेलेबल होती है, तो आपके 4 स्टेप बच जाते हैं। तो लॉग बुक से आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं कल आपको बताऊंगी और उससे सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट देखो 10th इन NaOH solution OH minus is 2.8 into 2.87 into 10⁻⁻4। कैलकुलेट द pH। बेटा बेस में पहले POH से आप OH माइनस से POH निकालोगे एंड देन POH से pH निकालोगे। ध्यान दो, NaOH में डायरेक्टली pH नहीं निकाल सकते हो, NaOH में पहले क्या निकालोगे? POH। आफ्टर कैलकुलेटिंग द POH यू विल कैलकुलेट द pH यूजिंग द फॉर्मूला pH plus POH is equal to 14. So 14 is equal to pH is equal to 14 minus POH। समझ का? और ओके, तो ट्राई करो, ओके, ट्राई एक न्यूमेरिकल मैं बता रही हूँ, अगर नहीं जमा जिसको भी नहीं आएगा वो मुझे पूछेगा, ओके, आई विल टेल हाउ टू सॉल्व इट। लेकिन बहुत ईजी है, आप लोगों को आ जाएगा, ओके, लेकिन अच्छे से ट्राई करो। So see you tomorrow.